Hi, so welcome to DCA. Today we'll be discussing, something about CDS. If you talk about CDS 1 2020, we know that still the official cutoff has not been revealed. But if you talk about in general, right, generally people are saying that the cutoff was generally 95 plus or maybe 97 plus. This is what goes on as a budge among the CDS aspirant, and we believe so as well that it is definitely greater than 94 or 95 this time. So was there any specific reason why people were expecting that the cutoff had rose slightly? Earlier the cutoff used to be around 78, 86, 90s was a comfortable for the OTA. We are basically sticking to the GS portion and the kind of English portion, that is for OTA. Maths we can discuss it as separate module. It all depends on practice. So the theme is why overall cutoff was high in CDS 1 2020. There were some candidates who scored 93, 94, but still they are not into the written merit list, right? Written वाले list में उनका नाम नहीं था. So ये concern होता है कि okay, what is the safe score, right? So there is nothing, जब तक पेपर ना आ जाए तो आप कह नहीं सकते कि हाँ इस बार इतना होना चाहिए. But nowadays what the trend is and what we generally suggest any of the aspirants who is aspiring for OTA कि English और GS मिला के your score should be exceeding 100, right? To be on the safe side. Maybe the cutoff can be lower as well, depends on the question paper. But we generally talk about focus on 100 plus English as well as GS, including GS. The maths, keep it separate one. So we'll look into the details of the questions which were asked and why it happened. First, English को हम बाद में discuss कर लेंगे because एक तरह से अपना module है जो more or less same रहता है हर बार. Now, if you look upon the GS questions, if I ask you and if you go through the paper, you can find there were some questions which are unsolvable in the examination time. That means the answers can be googled only. Google books में मिले या फिर आपको different resources में मिले, research articles में मिले. जो exam hall में question को solve तो छोड़ो, समझना भी मुश्किल था. There were some question for all, even आप students के लिए नहीं, faculties के लिए भी वो बहुत, it was like a typical task. It was not easy. It was unanswerable kind of questions in the exam. There were 14 questions in the GS paper which was really very difficult. जो आप सोच भी नहीं सकते और उस क्वेश्चन के लिए आप तैयारी भी नहीं कर सकते. So there are always some question in UPSC papers, right? Even in CDS exam as well as ND exam, UPSC जो भी पेपर डिजाइन करेगी GS में, जिसका आंसर और जिसके लिए तैयारी करना लगभग इम्पॉसिबल है. लगभग you cannot read each and everything. Is every question from NCERT? No. Are majority question from NCERT? Yes, this is possible, right? तो आप कोई 1, 2, 3, 4, 10 बुक्स पढ़ सकते हैं. हर एक आर्टिकल नहीं पढ़ सकते. आपने प्रिंट का आर्टिकल थोड़ी पढ़ा होगा. आप हिंदू पढ़ते होंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते होंगे, स्क्रॉल नहीं पढ़ते होंगे. सो यू कैन नॉट कंपाइल एवरीथिंग. नोबडी कैन. इट्स ए इनह्यूमन टास्क, राइट? सो देयर आर 14 क्वेश्चन. यू कैन वेरीफाई. आप जाइए, आपको खुद भी लगेगा कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है जो कभी सोच नहीं सकते आप. ओके, वैसे क्वेश्चन है. 14 अनसॉल्वेबल क्वेश्चन. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर 4 NCERT बॉक्सेज क्वेश्चन. हमने एक पोस्ट भी डाला था NCERT बॉक्सेज में, जिसमें कि आप देखोगे कि जहांगीर जो है सो एक पेंटिंग है जहांगीर की जिसमें वो दूसरे राजा को गले लग रहा है. वो पेंटिंग किसने डिजाइन किया? अब ये तो वही है ना कि आप बॉक्स पढ़ोगे ना, तो कोई कोचिंग आपको पढ़ा सकता है. द ओनली सॉल्यूशन इज कि आपको खुद NCERT की वो थीम या बॉक्स पढ़नी पड़ेगी. अदरवाइज देयर इज नो अदर सॉल्यूशन. आप कोचिंग लो ना लो, डजंट मैटर. वो 3-4 क्वेश्चन जो कोचिंग वाले हर कोचिंग में पढ़ा जाता है, जो कॉमन है, आप कहीं भी लोगे ना. इफ यू टॉक अबाउट 30 डेज 40 डेज कोर्स, इट्स इम्पॉसिबल. 30 डेज में आप क्या पढ़ लोगे? 30 दिन लगातार हिस्ट्री पढ़ोगे तो भी आंसर नहीं कर सकते आप ऐसे क्वेश्चंस को, राइट? तो भाई प्रॉब्लम क्या है कि आप ये मान के चलिए कि उस 120 में से 20 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं दैट इज बियॉन्ड द बैंडविड्थ ऑफ द एस्पिरेंट्स. 20 तो आप वॉक ओवर लेके चलोगे, 20 तो आना ही नहीं है. एंड वो भी मैं तब कह रहा हूं जब आप सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, राइट? फॉर एन एवरेज स्टूडेंट इट कैन बी 30 एज वेल, राइट? अगर आपने NCERT ऊपर और थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, 1 बार या 2 बार रिवाइज किया है, तो शायद आपके लिए थोड़ा बहुत आसान भी होगा. बट अदरवाइज इट्स रियली वेरी टफ, राइट? सो एक तो ये कैटेगरीज हो गई, इसको तो टच ही नहीं करना है ना. बच्चों ने किया होगा, कुछ लोगों ने गेस लिया बाई चांस. अगर आपने, एक होता है कि 4 में से इफ यू हैव 4 ऑप्शन यू कैन टेक 1. देयर इज ऑलवेज 25% प्रोबेबिलिटी फॉर ए क्वेश्चन टू बी करेक्ट. चाहे क्वेश्चन आए ना आए, 25% चांस तो है ही ना कि सही हो सकता है. बट बशर्ते आपको क्वेश्चन ये भी नहीं पता लगेगा हिस्ट्री का था कि पॉलिटी था कि हिस्ट्री का था, राइट? Next, if you talk about current affairs, which is of course definitely a scoring portion in CDS exam, आजकल ट्रेंड्स भी है,
राइट, बट ऐसा नहीं कह सकते कि लास्ट टाइम इट वाज अराउंड, यू नो, इफ यू गो फॉर दिस देयर वर अराउंड 19 + 3 डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन है, 19 मोर और लेस करंट अफेयर, जैसे मनरेगा को भी करंट अफेयर में इंक्लूड कर ले, बट इट्स नॉट इन करंट अफेयर, वो 10 साल पहले की बात है। एमपी लैड स्कीम को आप करंट अफेयर नहीं मान सकते, वो पुरानी चीजें हैं, राइट। सो मोर और लेस इट्स अराउंड 22 इंक्लूडिंग ऑल, लेट सपोज डिफेंस वाले भी एक्टिविटीज को हमने मान लिया, सो इट वाज 22 लेट अस सपोज, जिसमें से 14 वाज इजी, जो मुझे लगता है कि हर सीडीएस वाले बच्चे ने जहां से भी किया होगा, आप जैसे भी प्रिपरेशन करते होंगे, मेरे ख्याल से 12 से 14 क्वेश्चन शायद आपने किया हो, अगर आपने पेपर दिया है या आपको अभी अब देखने का मौका मिले तो आपको लगेगा हाँ आई कुड हैव डन दैट, राइट। सो 14 वेर इजी, राइट। नेक्स्ट कमिंग टू द साइंस, CDS 1 2020 was very easy in terms of science, you know, in terms of number, that is around 29 question from physics, chemistry, biology, as well as 1-2 straightforward question for the environmental application, right, out of which 22 can be found in any of the books. In fact, अगर जो बच्चा +1 +2 साइंस है, और इनफैक्ट इफ यू हैव डन क्लास 9-10 सीरियसली, दैट मीन्स यू आर ए रेगुलर स्टूडेंट, यू आर ओबीडिएंट स्टूडेंट इन क्लास 9-10, यू कुड हैव डन एटलीस्ट, आप बुरे से बुरे हाल में भी 20+ जरूर कर सकते थे, राइट। और जो इस बच्चे ने थोड़ी बहुत भी तैयारी की होगी, मतलब साइंस का बहुत प्रिपरेशन का शायद इस पेपर में फायदा नहीं था, बिकॉज क्वेश्चंस ऑफ साइंस वर रियली वेरी इजी। सो एनी बियॉन्ड एवरेज, लेट्स सपोज कि हम बात करते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ सीट्स आर ऑल्सो लेस, सो इफ यू टॉक अबाउट 6,000 और 7,000 स्टूडेंट्स इन द मेरिट लिस्ट ऑफ रिटन, एक्चुअली रिटन, तो उसमें वो 6,000 या 7,000 बच्चे ऐसे जरूर होंगे जिन्होंने साइंस में 22+ लिया होगा। रीजन, लॉट ऑफ साइंस स्टूडेंट्स आर ऑल्सो अप्लाइंग फॉर सीडीएस नाउअडेज, इंजीनियरिंग करके भी लोग अप्लाई कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। इवन एमबीए ग्रेजुएट्स, एमबीए कॉलेज में वो भी अप्लाई करते हैं, बिकॉज द चार्म ऑफ द जॉब इज टू हाई नाउअडेज, पर्क्स, इंसेंटिव, एवरीथिंग इज देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर सम सिविल सर्विसेज और पीसीएस स्टूडेंट जो सोचते हैं आगे, वो फॉर्म भरते हैं, पेपर देने तो जाते ही है ना, तो जो लोग थोड़े बहुत, उसमें से 10% क्राउड होगा जो शायद ये पेपर प्रैक्टिस के लिए दे या फिर जाना भी चाहते होंगे। फॉर्म भरने पे तो किसी को रोक है नहीं, एनीबडी कैन अप्लाई। So that means there were definitely 7,000 to 8,000 candidates who has done more than 22 out of this 29 science question. मैं जो 5-6 छोड़ रहा हूँ, the question, you know, 6-7 जो questions which I am skipping, शायद टफ था, उसमें मैंने बायोलॉजी के क्वेश्चन इंक्लूड किए, बट I feel that biology questions could also have been answered by class 9 student, where they have asked, you know, Edward Jenner, where they have asked Golgi bodies, kind of questions like that. It was easy actually, right? Now in geography and environment there were total, geography plus environment, there were 5 questions which was easy, जो कि एक आम बच्चा बिना प्रिपरेशन के कर सकता था। In history there were 2 questions which could have been answered straightforward. आज के लिए आप हिस्ट्री पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी, आप कर सकते थे। पॉलिटी मे बी 5 to 6, इट वेरीज। पॉलिटी मोर और लेस सीडीएस वालों को ठीक होती है, बिकॉज इट्स कंसिस्ट ऑफ चंक ऑफ क्वेश्चंस इन एवरी सीडीएस पेपर, तो लोग तैयारी करके जाते हैं। इन इकोनॉमिक्स देयर वर 3 क्वेश्चन लाइक, यू नो, रेपो रेट, सीआरआर। अब ये बहुत बेसिक है, जो मुझे लगता है कि उन 6-7 हज़ार जो बच्चे हैं जो रिटर्न के लिस्ट में आने हैं, उनको जरूर पता होता है। आपको नहीं पता हो सकता, मुझे नहीं पता हो सकता, मे बी, बट आम बच्चे को नहीं पता होगा। जो लोग 6-7 हज़ार जो रिटर्न में आने वाले, वो तो कम से कम ये आरबीआई के बारे में, उनकी पॉलिसीज, उनके मॉनेटरी स्टेप्स के बारे में पढ़ के ही जाते हैं, राइट। सो ओवरऑल इफ यू लुक ओवर दिस, देयर इज अराउंड 14 easy, that is 22, that is around 36, 41, 43, 49 and this 52, approximately 52 easy questions out of 120, right? तो मान के चलते हैं, लेट्स सपोज एक एस्टिमेट 50 का ले लेते हैं, सो दिस इज अराउंड 8.8 से आप मल्टीप्लाई करते हो, अप्रॉक्सीमेटली 40। सो देखो 40 सुनने में ज्यादा लग रहा है, लग भी रहा है, सीरीज के पेपर में 40 लाना अच्छा स्कोर माना जाता है इन जीएस, बट इफ यू टॉक अबाउट कि देखो क्वेश्चन इस टाइम इतने इजी थे कि लोगों के आ गए। आप इसमें आपके कुछ नेगेटिव होंगे, मान लो आपने 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो नेगेटिव होके आप 36-37 तक पहुंचोगे। दैट मींस द एवरेज जीएस स्कोर फॉर दोज हु मेड इनटू द लिस्ट, राइट, जो रिटर्न के लिस्ट में आए, उनका 35+ था। सो ये जनरली थोड़ा सा अजीब सा ट्रेंड है, बिकॉज इतने जनरली स्कोर नहीं आते। अगर आप सीडीएस 1 2019 की बात करोगे, द कट ऑफ हैज बीन डिक्रीज टू 10, तो एक साल में आप देखते हो पेपर फ्लक्चुएशन कितना है। सीडीएस 2 2019 में करंट अफेयर्स कम था, तो यू कैन नॉट से कि ट्रेंड, मतलब आप ट्रेंड से पढ़ाई ना करें। बट एक चीज मैं आपको जरूर कहूंगा, व्हाट आई वुड लाइक टू सजेस्ट इज दैट मेक श्योर कि आप 8, 9, 10th की जो साइंस है, अगर आपको नहीं आता है तो बहुत अच्छी बात है, और आपने साइंस किया तो आपको शायद पढ़ने की भी जरूरत ना करे, ये एनसीईआरटी से आप जरूर करें, एंड करंट अफेयर्स ये पार्ट जरूर करना है।
अगर आप एटलीस्ट अपने को कंपटीशन में बनाए रखना चाहते हैं, तो सेफ रखना चाहते हैं, कट ऑफ कम से कम। इसके अपार्ट्स आप डेफिनेटली बिना पॉलिटी के आप चल नहीं सकता, पॉलिटी आप पढ़ेंगे ही, राइट। अ लिटिल बिट द बेसिक्स, देखो कोई भी सब्जेक्ट का ना आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत आइडिया जरूर होना चाहिए। एंड इफ दे आस्क यू कि व्हाट इज रेपो रेट एंड इफ यू आर नॉट आंसरिंग इट, सो आपको लगेगा कि क्वेश्चन टफ है। इट्स नॉट लाइक दैट। देयर आर कॉमर्स स्टूडेंट जो कि शायद आंख बंद करके भी ये क्वेश्चन सही कर लेंगे। तो आप एज ए होल देखा करो, यू शुड नॉट ट्रीट लाइक द क्वेश्चन वाज न्यू और अननोन और टफ फॉर यू। इट्स जरूरी नहीं कि बाकी बच्चे के लिए टफ हो, राइट। सो दैट इज वन ऑफ द कंसर्न कि जीएस में आप आज के डेट में जो आज का सिनेरियो है, नंबर ऑफ सीट्स डिक्रीज, बच्चे भी पढ़ने लगे हैं, रिसोर्सेज बहुत हैं, सब कुछ बेसिक किताबें भी पढ़नी है, राइट। मैंने बताया कि एनसीईआरटी के बॉक्स से क्वेश्चन आए, अब वो तो कोई कोचिंग या कहीं भी आपको नहीं पढ़ा सकता, राइट। कोचिंग के नोट से आप जहां भी पढ़ेंगे ना, जो भी करेंगे 30 दिन 35 दिन वाले में कुछ भी डायरेक्ट नहीं आएगा, ये बात आप मान के चलो, राइट। ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी के भतीजे थे, वो इंडियन ओरिएंटल सोसाइटी के आर्ट्स के जो हेड थे, फाउंड किया उन्होंने। अब ये क्वेश्चन आप जनरली नहीं पढ़ते, राइट, जनरली नहीं पढ़ते। आप पढ़ते होगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये एक्ट वो एक्ट, राइट, हंटर कमीशन पढ़ा होगा आपने जो क्वेश्चन आया। बट ये जो क्वेश्चन है जहां पे कि मेरिट लिस्ट का फ्लक्चुएशन होता है, ऐसे 10 क्वेश्चन जो कि आपको एज दिला सकता है, उसके लिए आपको थोड़ा बुक पढ़ना पड़ेगा। दैट इज बेसिक्स वन, राइट, अपार्ट फ्रॉम द क्वालिटी क्वेश्चंस व्हिच यू प्रैक्टिस, राइट। दैट्स व्हाई ऑलवेज सजेस्ट कि आप एनसीईआरटी किताब जरूर पढ़ें, एज वेल एज टेस्ट जरूर प्रैक्टिस करें, इट हेल्प्स। करंट अफेयर्स ऑफ कोर्स मैंडेटरी, और बाकी जो भी आपको इच्छा लगे कि नहीं कम से कम इतना कर लेता हूं, बट ऑलवेज प्लान फॉर 35 प्लस मिनिमम। अब आज के डेट में ना इतना आपको सोचना पड़ेगा, राइट, कि मान लो 29 क्वेश्चन साइंस के आगे, लेट सपोज इस बार 20 ही आते हैं, हो सकता है, राइट, हो सकता है 6 फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आ जाए, कम भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि हर बार 29 है, ये तो इस बार लॉटरी लग गई थी। इंग्लिश, तो अगर आप वहां पर आज के डेट में देखोगे ट्रेंड्स, तो पीपल आर स्कोरिंग 62 प्लस फॉर श्योर। अगर आपका स्कोर 62 प्लस से कम है ना, 62 से कम है, तो मतलब आपको थोड़ी मेहनत की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यू आर नॉट गुड इन इंग्लिश, नो, आई एम नोबडी टू से दैट। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट दोज कैंडिडेट्स हु आर इन द रिटन मेरिट लिस्ट आर एक्चुअली गेटिंग मोर देन दिस। तो देखो अपने को उन 6000 से कॉम्पीट करना है जो कि इस बाउंड्री के ऊपर है। यू हैव टू मेक श्योर। कैसे मेक श्योर करेंगे? द ओनली थिंग इज प्रैक्टिस। आप एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से प्रैक्टिस कर सकते हैं इंग्लिश, बिकॉज मोर और लेस दे आर एट द सेम लेवल। तो आपको कंफर्ट जोन भी होगा और आपकी स्पीड भी बनेगी, एक्यूरेसी बनेगी। आपको लगता होगा, देखो मुझे भी लगता है इंग्लिश मुझे ठीक ठाक आती है, बट स्कोरिंग इन सीडीएस पेपर और यूपीएससी इज टफ एक्चुअली, राइट। सो आप किसी हाल में 65 प्लस यहां कर ले ताकि 62 सर जरूर रहे, एंड दिस विल एड अप। 65 वहां पे, 35 यहां पे। और मैं तो ये कहूंगा कि आप इंग्लिश पे इतनी मेहनत करें कि सारे क्वेश्चन लगभग अटेम्प्ट करें एंड ट्राई टू स्कोर 70 प्लस एज वेल, अगर हो सकता है तो। मैंने उन बच्चों का भी ये ध्यान रखा यहाँ पे, जैसे कि जो कुछ हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं तो वो डिमोटिवेट ना हो जाए, इसलिए मैं कहना नहीं चाहता था। बट स्टिल आई फील दैट कि आप 70 प्लस लाने की कोशिश करें अगर आप वाकई ओटीए के मेरिट लिस्ट में जाते हैं। और ओवरऑल मतलब देखो ऑन द एवरेज इसके बाद ही इसमें मैथ्स के मार्क्स लगने, बट 135 140 प्लस अगर आप टारगेट करेंगे, 145 प्लस टारगेट करते हैं, लेट अस सपोज आप एएफए के लिए एस्पिरेंट्स हैं, सो इट इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर दैट, राइट। सो प्लान आप ना सिलेबस के हिसाब से मत बनाओ, प्लान आप ये बनाओ कि इफ देयर इज सम इजी क्वेश्चन यू आर डेफिनेटली गोइंग टू सॉल्व इट। अगर आप इजी क्वेश्चन स्किप मार दोगे कि नहीं मैं साइंस के स्टूडेंट नहीं हूं, नहीं मैं इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट नहीं हूं, तो काम नहीं चलेगा। आप नहीं है, बट उस क्राउड में जो बच्चे पेपर देने आ रहे हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनमें से काफी बच्चे तो हैं। यू कैन नॉट मेक एक्सक्यूजेज दैट आई एम नॉट कॉमर्स स्टूडेंट, आई एम नॉट आर्ट स्टूडेंट, ह्यूमैनिटीज नहीं आती है, आई एम नॉट गुड इन साइंस, ये सब नहीं चलेगा। इट्स अ कॉमन पेपर सबका। ये तो लक होता है, किसी साल इकोनॉमिक्स के 15 क्वेश्चन आए, किसी साल 10 आ गए, किसी साल साइंस के ज्यादा आ गए। तो इस बार साइंस वाले बच्चे बहुत मिल गए होंगे आपको जिनको बहुत आसान लगा वो पेपर, एंड दैट्स व्हाई द कट ऑफ हैज इंक्रीज्ड दिस टाइम। सो दिस इज ऑल व्हिच आई हैव फाइंड आउट इन द CDS 12020. Wanted to share the insight with you. Hope this session was helpful for you. Thank you. All the best.